respected T.N. Singh, respected Chair and Director IIT Patna, Mr. Rajendra Prasad Singh, Board of Governors Chairman IIT Bhubaneswar, Mr. R.K. Pathak, Secretary Technology Development Board, Government of India, Professor Vinita Sahai, Director IIM, Professor Arvind Chaube, Director IIT Bhagalpur, distinguished Director of every places who are sitting here, Professor A.K. Thakur, Convener and other distinguished guests, faculties, students, friends from media. I feel honored to be the part of this august company in the inaugural session of the workshop on research, infrastructure and entrepreneurship in science and technology and the product launch ceremony. I wish to put on record my sincere appreciation for the Technology Development Board, Government of India, Technology Business Innovation and Incubation Center, IIT for its commendable initiative. Bihar has already been a fertile abode of seekers of new ideas. Can we think of modern mathematics and science without the contribution and research work of Aryabhat, a resident of Bihar? Even the Navin Nyay of Mithila centralized emphasis upon philosophical discussion with an underpinning of perception, inference, comparison and testimony. This is the age of knowledge. Without proper research, you can't create new knowledge. Honorable Prime Minister, awarded mission of Atmanirbhar Bharat and Make in India required innovation, research and development initiatives from its premier institutions like IIT, NITs and IIMs. As is evident from the scheduled event here, you have already developed Indigency, the first made in India battery management system, which is ready for the commercial use. There could not have been a better launch podium like this, which is graced by the fabled administrator come illustrated leader, Mr. R.K. Singh ji. I recall that when our leader, Honorable Chief Minister Nitish Kumar ji, envisaged the great leap in infrastructure development, he had entrusted Mr. Singh with his important job, the systematic planning, monitoring and execution with clinical precision lead to strong road infrastructure in Bihar. The energy sector in India has witnessed unforeseen development. Bihar is similarly looking up to Sanawaz Hussain by a leader par excellence for innovative ideas for industrialization of Bihar under the guidance of Honorable CA. With his experience and connection, I repeat this, with his experience and connection, Bihar should become an ethanol hub in near future, but all their efforts do need technology and scientific support. Bihar has been famous for its intellectual power. It is heartening to know that our son of soil like Mr. Pathak, Secretary TDB, Mr. R.P. Singh, Honorable Chairman, BOG IIT Bhubaneswar and Mr. T.N. Singh, our own Director IIT Patna, are contributing their might in their initiatives. These initiatives. As you are aware, under the visionary leadership of Nitish Kumar, Bihar has been sculpting glorious chapter in all phases of development. The government of Bihar has embarked upon the mission of creating centers of excellence with a thrust on emerging technologies in our government technical institutes like Government Polytechnic. ITI in every nook and corner of Bihar, but as discussed earlier, all government initiatives need support of the industries, researchers, academics and educational institutions. Hence, allowed your effort in bringing all of them together and providing an enabling ambience at our one platform. This 3-day event incorporates and provides opportunity to all stakeholders. IIT Patna is well equipped with capable human resources as faculties and infrastructure for endeavors. My department has been getting the benefits of your knowledge capital, Buddha Stupa at Vaishali, and under construction marble based on stone masonry, International Cricket Stadium, Rajgir, and many big projects have been structurally weighted by IIT Patna. There is a person I mean two of my best friends, Mr. Vishwajit Sahai, Additional Secretary, Minister of Science and Technology, and Mr. Akhilesh Jha, Chief Controller of Account, DST, are also taking part on this event on 14th and 15th. But I am not able to be in this. I would love to be part of this celebration. Professor A.K. Thakur, the convener, has been interacting with me since my tenure as a Minister for Education and IT.
we would have collaborated an event then, and I must assure that government of Bihar would extend all necessary support in every manner. To the students, I would just remind that in innovation distinguish between a leader and a follower. You must be aware that the first 40 days of 2022, India has already added 8 new unicorns. Hence, to drive to be a leader in your field, I please make the best use of this workshop. Once again, I thank all the organizers for having such a beautiful event. साथियों, 15-17 वर्ष पहले हमारे नेता ने इस बिहार की बागडोर को संभाला था और हम सब भाग्यशाली हैं। ऐसे व्यक्तित्व के साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। पहले जो 70 साल की आजादी के बाद जब माननीय नेता इस प्रदेश की बागडोर नीतीश कुमार ने संभाला था, और सौभाग्यशाली है कि जो 3 लोग यहाँ हम बैठे हैं, इन तीनों लोगों को नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला है। आर.के. सिंह साहब एज ए IAS ऑफिसर, एज ए सीनियर IAS ऑफिसर, उन्होंने भी नीतीश जी के साथ काम किया है। और आज जो मूलभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, खासकर रोड के सेक्टर्स में, इनकी एक अहम भूमिका है। मंत्रिमंडल में थे और नीतीश कुमार जी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंत्रिमंडल में थे और उनके साथ इन्होंने भी काम करने का इनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम भाग्यशाली मानते हैं कि एक ऐसा नेता जिसने अपने टेन्योर में आने के बाद इस प्रदेश को BIT, IIT, NIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी और इस प्रदेश में चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, सब IIM बोध गया, सबके लाने में उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लगाई है। जो नेता बड़ा होता है, योजनाओं का निर्माण करता है, का प्रावधान करता है, उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम भाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके पास विजन है, जो आने वाले बिहार के लिए 21वीं सदी का सपना जिसने देखा है और उस सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। हम सब मिलकर के आइए 21वीं सदी के उनके बिहार का जो उन्होंने सपना देखा, उसको हम सब मिलकर के पूरा करने की कोशिश करें। जय बिहार। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your vision for Bihar and IIT Patna. I now invite our guest of honor, Shri Syed Shahnawaz Hussain ji, Industries Minister, Government of Bihar, to say a few words. IIT पटना के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई, मेरे पड़ोसी, जिनको हमारी पार्टी से जोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला और जिन्होंने बिहार की सड़कों को जोड़ा और जिन्होंने होम सेक्रेटरी के नाते राष्ट्रपति जी के ओथ के वक्त में मैं मेंबर पार्लियामेंट था, तो मुझे गर्व होता था कि आर.के. सिंह साहब उस सेंट्रल हॉल में ओथ करा रहे हैं। और आज मुझे गर्व है कि देश में पावर, ऐसे भी बिहार के लोग पावर शब्द से बड़ा लगाव रखते हैं, एनर्जी से भी लगे। वो दोनों देश में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रोड में कमाल करके दिखाया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पावर में कमाल करके दिखाया है। ऐसे श्री आर.के. सिंह मेरे मित्र और बिहार सरकार के मंत्री, भवन निर्माण के, जो शिक्षा के भी मंत्री रहे और काफी पढ़े लिखे, बहुत वेल कनेक्टेड, साफ सुथरी छवि के अशोक चौधरी जी, यहाँ पर मौजूद इस कार्यक्रम में श्री DN सिंह साहब IIT पटना और राजेश कुमार पाठक जी, हमारे सीमांचल के ही हैं, कटिहार के। सारे बिहारियों का जमवाड़ा है। यहाँ पर मौजूद प्रोफेसर विनीता साहिबा, IIM बोध गया, हमारे भागलपुर के IIM
ट्रिपल IIT भागलपुर के डायरेक्टर अरविंद चौबे साहब, PK जैन साहब, BIA के बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल साहब, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो IIT पटना को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने RK सिंह जी को राजी किया इस वर्कशॉप में आने के लिए। बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, टाइम आसान नहीं होता क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है। और मैं तो इनके यहाँ जब ये बिहार में भी थे तो बिना अपॉइंटमेंट बहुत से नेता इनके यहाँ जाते नहीं थे, थोड़ा सा डरते भी थे, ज्यादा पड़वा भी नहीं किए उन्होंने। जब DM बने थे तो हम छोटे थे तो मेरे अब्बा लेके आए, बोले कि देखो बोर्ड ये सुपौल के हमने, और इनके पिताजी थे बचपन में हमको घुमाते थे, टॉफी देते थे, बोले ऐसा बनना है। बिहार में तो होता ही, हर बच्चे के दिमाग में डाल दिया जाता है तुम्हें IAS बनना है, IPS बनना है, तुम्हें BPSC करनी है, पूरा बिहार का कंपटीशन की तैयारी में लग जाता है। वहीं गुजरात जाइए तो बच्चों को कहा जाता है तुम्हें अंबानी बनना है, तुम्हें टाटा, तो वो बच्चा लग जाता है एकदम कैसे बिजनेस में आगे बढ़ा जाए। वहां आप देखेंगे छोटा आदमी बिजनेस की बात ही शुरू करता है, हमारे यहाँ वो रिवाज कम है। तो हम लोगों को भी बताया गया कि RK सिंह जैसा बनना है, तो वो तो नहीं बन सके। RK सिंह, हमारे यहाँ तो जन्म भी एक ही होता है हमारे धर्म के हिसाब से, आपके यहाँ तो 7 होता है, तो आपके यहाँ ऑप्शन है। कहते आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, मैंने कहा भाई चौधरी साहब को तो 7 जन्म लेना, हमको जो कुछ करना है इसी जन्म में कर लेना। इसलिए RK सिंह साहब को, इसलिए मैंने कहा कि जब राष्ट्रपति का वोट हो रहा था और मैं देख रहा था तो जो परिवार के सदस्य के नाते मुझे गर्व हो रहा था कि वो बुला रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। बाद में होम सेक्रेटरी से रिटायर हुए, मैंने अपने नेता नरेंद्र मोदी जी को फोन किया, और मेरा संबंध ऐसा है कि मैं शायद एक ही IAS के घर बिहार में गया। मैं किसी को, जब मैं उनके घर जाता था भागलपुर के रोड्स के लिए, सब काम करा के आता, नाश्ता खाना भी खिला के भेजता। एक दिन कोई नेता गया, बोला कि आप कैसे चले जाते हैं, यहाँ तो कोई नेता इनके घर पे आज तक गया ही नहीं। मैंने कहा हम नेता बन के नहीं जाते, छोटे भाई बन के जाते। और हमारा पुराना परिचय, तो मौका मिला काम का, और जब पावर मिनिस्टर बने, मैंने आपसे कहा कि हमारी पार्टी में आए, हमारे लिए गर्व की बात। हमें जब प्रधानमंत्री जी को फोन किया, उनका एकदम कैसे भी उनको लाओ, राजी नहीं थे, लेकिन हमारे बाल हट के सामने ये राजी हुए और हमारी पार्टी से लड़े और MP बने, मिनिस्टर आज हैं। और जो परफॉर्मर है मिनिस्टर, जो भारत सरकार में जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें RK सिंह साहब नहीं। एक बार अभी 2 दिन कबल मुझे मिलना था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क बना रहे हैं। जो आप कहते हैं ना कि पहले बिहार से प्रस्ताव नहीं आते थे, अब बिहार बदल गया, हम कोई प्रस्ताव छोड़ते नहीं। मेगा टेक्सटाइल पार्क आया, हमने मुख्यमंत्री जी से जाकर मुलाकात की। मैंने कहा सर इसमें बिल्ड करेंगे, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा अरे कहाँ से करेंगे आप? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, बिहार के लोग कर सकते। और मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मुझे थोड़ी लिबर्टी है, क्योंकि भारत रत्न की कैबिनेट में नवरत्नों में एक नीतीश कुमार जी भी थे और मैं भी उसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहा था, तो पुराना संबंध है।
तो संबंधों का लाभ होता है वर्किंग। मान लीजिए पाठक जी हैं और मुझे पता लगे कटिहार के हैं, तो फिर इनसे क्या टाइम, जब चाहेंगे इनसे मिलेंगे। इसलिए जब मैं पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है तो मैंने टाइम लिया। तो टाइम इनके पीए ने कहा कि नहीं अब साहब तो पार्लियामेंट में है। मैंने कहा 9 बज रहा। तो उन्होंने कहा नहीं आजकल वो 2 शिफ्ट में चल रही है। तो 10 बजे आए, पूरे दिन थके हुए थे, लेकिन मैं 10 साढ़े 10 पहुंचा, 11:30 वहां से निकला। बिहार के बारे में इनसे बात करके अखबार में नहीं दिया। कई बार लोगों को लगता होगा अखबार में बड़ा पब्लिसिटी हो रहा है। मैं तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं चाहूँ तो रोज 3 घंटा टीवी पे डिबेट में बैठता है। थोड़ी है कि 2 लाइन छप जाएगा तो मैं बड़ा हो जाऊँ। मैं तो बहुत सी चीजें बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ नजर लग जाती। मैंने बताया ही नहीं। मैं आरके सिंह साहब से मिला, मैंने कहा भैया आपको ये करना ही है। 2 लोग हैं, ब्रजेश मिश्रा जी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम थे तो मैं उनको अंकल कहता था और बहुत जिद करके बहुत से काम करा देता। और मिनिस्टर में से आरके सिंह जी हैं जिनको मैं मंत्री जी नहीं कहता, भैया ही कह के बुलाता। तो गया, उनसे बातचीत किया। अब इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर लग रहा है हम लोगों के घर में, अब कहाँ चेन्नई से बन के बिहार में आएगा। 14 करोड़ हमारी आबादी है, हमारी ताकत है। पहले बिहार की कमजोरी थी मजदूर, अब हम स्किल्ड हैं। अगर बिहार के लोग छठ पे आ जाते हैं तो छुट्टी जो है वहां सूरत में, चेन्नई में, सब जगह छुट्टी हो जाती है। क्या बात है, बोले बिहार के लोग बिहार चले गए। बिहारी अगर तय कर ले कि हमको 6 महीना बिहार में रहना है तो देश पूरा ठप हो जाएगा। यहाँ आया तो मैं तो जो बच्चे हैं IIT के उनको देखने में मैं यंग लग रहा हूँ, और बच्चे अभी देख भी रहे होंगे, आजकल गूगल भी करते हैं। कोई लीडर आ रहा है उसके बारे में पूरा, अब झूठ बोल के भाग नहीं सकते। नेताओं की जो आदत होती थी कुछ भी बोला चल दिए, गूगल करते। पहले लोग मुझसे पूछते थे आपकी क्या उम्र है, मैंने कहा मैं राहुल गांधी से 18 महीने साथ भी मैं यही कहता फिर निकाल लो कितना उम्र। तो मुझे जब मौका मिला वहाँ काम करने का, आज तो मैं कह रहा था कि मौका मिलता है काम का, तो मुझे तो मौका मिला। यानी अगर मैं आज आपके यहाँ आया हूँ, यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड शाहनवाज हुसैन बिहारी के नाम में काम करने का जो अनुभव है। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरे तो दोस्त दुश्मन राजनीति में सब होते हैं, जो जिस नेता के दुश्मन नहीं हो समझो किसी काम का नहीं। जिसको लोग गालियां नहीं दे समझिए कि जरूर नॉर्मल चल रहा है। आप समझिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को कितनी गालियां दी होंगी लोगों ने, जब गुजरात में थे क्या क्या नहीं कहा। जितनी गालियां दी ऊपर वाले ने उसको आशीर्वाद में बदल दिया, देश की प्रधानमंत्री भारत सरकार में। तो जब मैं यहाँ आया तो लोग कहते थे कि शाहनवाज हुसैन बहुत बनते थे। भाई हम तो पार्टी में प्रवक्ता भी, और जो 10 लोग हैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जो उम्मीदवार तय करते हैं, आपकी दुआ से मैं भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उन 10 लोगों में 2006 से हूँ। कोई कहेगा खुदे का टिकट नहीं मिला ही, उसमें क्या लेकिन अलायंस में सीट थी, अशोक जी उस सीट के भागलपुर में, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा वहां से। तो जब मैं यहाँ आया लोग कहते थे इंडस्ट्री कौन सा डिपार्टमेंट दिया है, और पहले दिन ही निगेटिव बात की क्या दिया। मेरे यहाँ जो लोग आए कोई खाना नहीं खा रहा था, भैया कौन सा डिपार्टमेंट दिया आपको, सांप कर दिया आपके गले में। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी वाली ट्रेनिंग है, सब बीम बजाऊंगा। चर्चा बिहार में हर क्षेत्र में काम हुआ है। जैसा अशोक जी ने कहा IIT आया, IIM आया, IIIT आया,
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सेंट्रल में उन्होंने काम किया है, वो एक वहाँ यहाँ भी एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात वो काम में लगे रहते हैं, पूरा परिवार बिहार को अपना परिवार मानते हैं। और मुझे मौका मिला तो हर चीज़ में हम बिल्ड कर रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग पार्क है उसके लिए भी हमने कहा कि हम बिल्ड करेंगे, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जिसमें हम नहीं करेंगे। अब मैं इस विषय पे आ जाता हूँ कि आपने जो इस पर जैन सिंह साहब ने बोल दिया, पाठक जी ज्ञानी आदमी, उन्होंने बोल दिया इस पे, इसको दोहराने की जरूरत नहीं, मैं इससे संबद्ध करता हूँ। जो बात आपने कही है वो सही है, बिहार बहुत इसमें आगे बढ़े। IIT पटना से हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड भी जो बैठे, मैंने अभी उनसे बात कर ली बैठे बैठे, और मैंने उनसे कहा कि आपसे भी एक MOU कर लेते हैं जैसे IIT पटना से किया है। बिहार के बच्चों में बहुत टैलेंट, बिहार के लोग कम साधन में भी बहुत आगे बढ़ते, और स्टार्टअप में ज़्यादातर बेंगलोर ही सब जाइए, ज़्यादा बिहारी लड़के, लेकिन एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है बेंगलोर का, चेन्नई का। जैसे पहले MBBS करता था बिहार से तो लिख देता था अलग जगह का नाम लिख देता था कि लोग सोचेगा पता नहीं बिहार से कैसे पास हो गया है। लेकिन बिहार के लोगों को ज्ञान की जरूरत कहीं से नहीं है, हम तो यही गौतम बुद्ध को ज्ञान यही मिला है, जब उनको मिला, हम बिहारी यहीं रहते तो हमें क्या ज्ञान उनको विक्रमशिला और नालंदा ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यही, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पहले वो यही है। तो मैं मानता हूँ कि बिहार के लड़कों में अगर IIT पटना उसमें मदद करे और पाठक जी भी उसमें ठान ले की मदद करना, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और सौभाग्य है कि यहाँ RK सिंह साहब हैं और उनकी बड़ी मदद होगी। बहुत अच्छा इन्वर्टर बनाया आपने, ये -20 में भी चलेगा। पहले तो जम्मू कश्मीर वाले की नज़र होगी इस पे कि वहाँ माइनस में रहता है और इतना हैंडी है कि इन्वर्टर लाइए वो तो आधा एरिया छेक लेता है। ये बहुत बेहतरीन आपने बनाया है। और मैं तो यहाँ पर सिंह साहब से कह रहा हूँ, कल मैंने स्टार्टअप में थोड़ी हल्की सी आलोचना आपके IIT की थी कि मैंने बहुत दिन से उनसे MOU कर लिया, नाम जीरो लैब है, मैं सोचता हूँ नाम बदल दूँ, लेकिन नाम का तो नहीं असर, शुरू ही नहीं होगा, उसका आइडिया लैब नाम वो उद्योग विभाग में नीचे में है। जब मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ तो बाएं हाथ, अब तो मैं रोज पूछता हूँ 1 साल से ये कब शुरू होगा, ये कब शुरू होगा। अपने सेक्रेटरी से पूछता हूँ कब शुरू होगा, बोले सर वो IIT पटना। एक दिन आके इन लोगों ने हमसे एग्रीमेंट हमारे चैम्बर में कर लिया, MOU किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिंह साहब उसको जल्दी चालू करा। और अपने यहाँ भी आपसे भी किया और हम पाठक जी से भी एक MOU करेंगे ताकि बिहार के बच्चों को फायदा उससे हो। बिहार में क्या क्या हो रहा है ये सब मैं बताने की जरूरत आज नहीं है, वो सब आप पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं। एक अदम है, एक इज़ार, एक हमारे अंदर आज़म है, एक इरादा है, एक संकल्प है। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मैंने कहा ना कि मैं आज आपको एड्रेस कर रहा हूँ, मुझे तो सौभाग्य मिल गया, मैं UN जनरल असेंबली को एड्रेस कर चुका। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं सिडनी ओलंपिक में इंडिया का लीडर होके गया, जबकि मैं स्पोर्ट्समैन नहीं, लेकिन एक मिनिस्टर था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो गया था। मैं कई जगह मैं वेल ट्रेवल्ड हूँ, मैंने देखा हुआ है, समझा हुआ है। और मैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी ने जिस उम्मीद से मुझे कहा कि जाओ शाहनवाज बिहार, तो जो उम्मीद उन्होंने हमसे लगाई और जो उम्मीद बिहार के बच्चों का है, उद्योग और रोजगार का, उसमें मैं सफल हूँ। ऐसा आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। और आज के दिन आपने बुलाया, मैं देख रहा था घड़ी, वो तो यही 2:30 बज गए, 3 बजे मुजफ्फरपुर में रहना था और थोड़ा सा डिले हुआ हूँ, लेकिन चलिए डिनाइड नहीं है, हम डिलेड चलेगा। आप सब खासकर IIT का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम सबको बुलाया, हम तो बगल में ही है। और ये जगह जो है, याडा ने ही, उद्योग विभाग ने 500 एकड़ दिया आपको,
तब ये बना है यहाँ। बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन समय की कमी नहीं है जो आज विस्तार से बताएं, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार सिर्फ मार्केट न बने। मैंने पूरे देश में जाकर कहा है कि बिहार आइए, बिहार अच्छा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार है, सुशासन है, जो बिहार आएगा उसका दिल से स्वागत है। इसलिए हमने सब जगह जाकर कहा है एक बार तो आइए बिहार में, बिना देखे राय मत बनाइए। फिल्म देख के अपहरण, गंगा जल, सब फिल्म देख के राय मत बनाइए, बिहार आके देखिए। ये बिहार है जिसके अंदर TN सिंह साहब हैं, पाठक साहब हैं, RK सिंह साहब हैं, चौबे जी हैं, सब बिहारी हैं। इनको इसके वजह से बिहार बनाना जाए, ये आकर लोगों को देखना है। और मैंने जाकर और भी लोगों से, इंडस्ट्री के लोगों, मैं कई बार बाहर जाता हूँ तो लोग समझते हैं घूमते रहते हो। हमको घूमने की क्या दिक्कत है, हम तो जहाँ चुनाव होता है वहाँ चले जाते हैं, और जगह जाते हैं, तो घूमने नहीं जाते। वो बिहार की ब्रांडिंग करने जाते हैं, लोगों को बुलाने जाते हैं। और उनको हमने कहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कि वो कहते हैं हमारा सामान बहुत बिकता है, तो हम उनसे कहते हैं, कह के एक नारा डेवलप किया, सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बदलते हुए बिहार के स्वरूप से हमें अवगत कराने के लिए और एक नए बिहार के निर्माण में हमारी जो योगदान हो सकती है उससे भी परिचय कराने के लिए। Now I invite our chief guest for this event, Shri RK Singh ji, Honorable Minister of Power and Minister of New and Renewable Energy, Government of India, to share his words. आदरणीय राघवाजी, माननीय उद्योग मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बिहार, RK पाठक जी, सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, TN सिंह जी, डायरेक्टर IIT PATNA, प्रोफेसर विनीता सहाय जी, डायरेक्टर IIT, प्रोफेसर अरविंद चौधरी जी, डायरेक्टर IIT भागलपुर, उपस्थित सभी महानुभाव, स्टूडेंट्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, फैकल्टी, लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। यह मौका अगर पहले हुआ रहता तो आज आपको शिकायत नहीं रहती कि फंडिंग नहीं मिल रहा। यही आकर के मुझे मालूम चला कि हाँ साहब आपको फंडिंग नहीं मिल रहा। पहले कभी किसी ने हमको फोन भी नहीं किया। फोन करते थे, एक चिट्ठी लिख देते। इसी आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई वर्क इन बिहार एज वेल। And it is natural for a minister or anybody to have a weakness for the state he comes from, and the state where he spent a good part of his working career. If I had known, I would have given you whatever funds you wanted. और अभी मैं कहता हूँ कि जो भी राशि की आपको जरूरत हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से या मिनिस्ट्री ऑफ पावर से, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए या अपने कैंपस में कुछ डेवलपमेंट के लिए, वो हम हमारा मंत्रालय, दोनों मंत्रालय में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है अच्छा बजट। हमारे जितने कंपनीज हैं उनके पास पर्याप्त निधि है। बड़े बड़े देश के सबसे बड़े कंपनियां हमारे मंत्रालय के अंतर्गत हैं, उनका बड़ा बड़ा CSR का बजट रहता है। आपको यहाँ पर अगर किसी चीज को बनवाना है तो बताइए, हम करवा सकते हैं। I mean anything for developing an institution like IIT। हम चाहते ये हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूशन हो उसकी रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऊपर आए। ये हमारी लक्ष्य है। और प्रेफरेंस
जबकि छात्र भरते हैं उसमें आई वांट योर स्टैंडिंग टू गो अप इन द लिस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, सो दैट इज व्हाट विल मेक मी प्राउड. आई विल बिगिन बाय थैंकिंग शाहनवाज जी. हम लोग नेबर्स हैं, हमारे असल में कुछ न कुछ ताल्लुकात रहे हैं सभी लोगों से एक्सेप्ट डायरेक्टर साहब. मैं जहाँ के शाहनवाज जी हैं वहीं का मैं हूँ और हम लोग का घर आसी पास है, तो पारिवारिक संबंध है. और ये बात सही है, जब मैं रिटायर किया था उसके तुरंत बाद किसी एक पार्टी ने हमसे कहा था कि आप हमें ज्वाइन कर लें, हमने हाँ कर दिया था. और उसके बाद शाहनवाज जी ने हमको जिद करके उस पार्टी कुछ तो हम हाँ कहा हुआ, हम उसको छोड़े फिर यहाँ ज्वाइन. आज जिनको हमने छोड़ा उनसे हमारी बोलचाल बहुत दिन तक नहीं, और ये नेचुरल है. बहुत तकलीफ उनके दिल में शायद अभी भी है, वो भी नेचुरल. अशोक चौधरी जी जिधर के हैं वहां मैं अपना करियर शुरू किया एज एसटीओ. आई वाज एसटीओ जम्मू 77 से 79. और मोतिहारी के ये चंपारण के ओरिजिनल हैं पाठक साहब, तो मैं मोतिहारी में कलेक्टर था 81 से 83. नाउ दैट इज एजिस्टेड एंड you know, basically, right from the beginning, somehow or the other, I had decided to come and join the civil services. My father wanted it, so I just, graduated, gave my graduation exam, and I sat for the civil services. And I got, I was right enough to get it. But I was not of age. हम 21 साल के नहीं हुए थे, तो हम IAS में नहीं बढ़ सकते. हम 20 साल के थे तो IPS के लिए बैठ सकते, तो हम बैठ के हम IPS में आ गए. अगले साल 21 साल के हो गए तो बैठ के IAS में आ गए. और ये ईश्वर कृपा है कि हमको बिहार का डर मिला. Now coming back to the topic of it's connected with making our country great. It's connected to the development part. Now, for any developing country, there are two basic challenges, fundamental challenges. One challenge, of course, is to make sure that we give to our people the basic essentials. Now, that is a challenge which faced us and which still, to some extent, faces us. Though we have met most, those challenges largely. And the second challenge, of course, is to catch up with the rest of the world. That is the second challenge. Now, both these challenges, for a developing country, you have to meet both these challenges simultaneously. बाकी सभी countries का जो development trajectory है वो series में है, हमारा parallel में चल. So we have to make sure that our people get the basics, and at the same time we have to make sure that we catch up with the world insofar as technology, science and technology is concerned, insofar as advanced technologies are concerned. We have to do both simultaneously. Now we are doing both. One more successfully than the other, but we are doing both. Now insofar as the essentials are concerned, I think we have by and large met the challenges. One major challenge, of course, was the most fundamental of all, and that was food. Now we met that challenge, and we met the challenge in such a way that we have huge stocks. We have been able to give free food to 80 crore people for 2 years. 2 साल तक, 31 मार्च तक हम देंगे, उसको बढ़ाएंगे. 2 साल तक कोरोना काल में हम लोगों ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुफ्त दिया. हमने इसका मतलब यह है, there can be no stronger proof that we have met the challenge of hunger. हम लोगों ने उस चैलेंज को लीड किया. दूसरा बेसिक, ये तो what I'm talking about is your journey and my journey. हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं आपका और हमारा ये
जॉइंट जर्नी, हम सब भारतीय हम लोग का जर्नी। दूसरा चैलेंज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में अभी हम लोगों के यहाँ करीब 8,70,00,000 घर तक हम लोगों ने नल से जल पहुंचा। 8,70,00,000 देश में, उसमें से 5.5 करोड़ घरों में हम लोगों ने पिछले 2 साल में पहुंचा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दूसरा चैलेंज होता है देश का। ये सब मेजर चैलेंज है। यू पीपल आर स्टूडेंट्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट योर कंट्री इज गोइंग थ्रू एंड व्हाट द चैलेंजेस बिफोर योर कंट्री। आपको ये समझना होगा कि देश के सामने क्या चैलेंजेस। तो ये हम लोगों ने कर, और इस साल हम लोग करीब 3 करोड़ 3.5 करोड़ घरों को, 3,60,00,000 घरों को और कनेक्शन देंगे बिजली से इस साल। उसके लिए हमने आवेदन किया 3.5 करोड़ ये ड्रिंकिंग वाटर नल से। सेकेंड मेजर चैलेंज। थर्ड मेजर चैलेंज एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हम लोगों ने एकदम बिल्कुल ये कर दिया है पिछले 4-5 वर्षों में। मैं ये नहीं कहूंगा कि जब मैं ज्वाइन किया एज ए मिनिस्टर, वो नहीं कहूंगा, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोग पहले पावर डेफिसिट, हम लोगों ने 2014 से लेकर के आज तक 1,61,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता हमने जोड़ा है। 1,61,000। We set up generation capacity, additional generation capacity of 1,61,000 megawatts. That is huge. And our total generation capacity today is 395 gigawatts. That means 3,95,000 megawatts. Now we are surplus, so we are now exporting power. Now surplus comes with its own problems, so I'll tell you those problems later, or maybe some other time. We connected the whole country into one grid. पूरे देश को हमने एक ग्रिड से जोड़ दिया है. The last bit was Leh Ladakh. We connected that, and now we are extending it to Janskar, etc. You know, deep in the interior of Ladakh. We added 1,72,000 circuit kilometers in just past 5-6 years. 1,72,000 circuit kilometer grid हमने जोड़ा. And we are now capable of transferring 112 gigawatts, 1,12,000 megawatts from one corner of the country to another. पिछले 4-5 वर्षों में हमने सभी राज्यों को करीब 2,02,000 करोड़ रुपए की राशि बिहार को दी, ताकि वो अपना वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करे। हम लोगों ने 2,900 नए सबस्टेशन के लिए पैसा दिया, 3,800 पुराने सबस्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए पैसा दिया, लाखों ट्रांसफॉर्मर्स के लिए पैसा दिया, HT लाइन्स, LT लाइन्स को बदलने के लिए पैसा दिया, करीब 5.5 लाख LT लाइन्स, 2.5 लाख सर्किट HT लाइन्स। इन सब के कारण यह हुआ कि हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता थी करीब 12 घंटे, वो आज के दिन में हो गई है 21.5 घंटे। आइए न्यूट्रल सर्वे है हमारा सर्वे, ये नेशनल एवरेज रूरल एरिया में 21.5 घंटे, 2015 में ये 12 घंटे, अर्बन एरिया में करीब 23 घंटे के आसपास नेशनल एवरेज, 23-23.5 घंटे के आसपास। अभी कहीं अगर शॉर्टेज होता है बिजली का तो वो लोकल फॉल्ट है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त बिजली है। अगर कहीं पर लोकल फॉल्ट है या कहीं किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पैसा नहीं बिजली खरीदेगा तब शॉर्टेज होता होगा, नहीं तो नेशनल लेवल पर नहीं। ये हम लोगों ने बिजली की व्यवस्था में पूरा आमूल परिवर्तन ले दिया। और एक्सेस, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि साहब हम हर गांव, हर मोहल्ला को, हर टोले को हम लोग कनेक्शन देंगे। वो हम लोगों ने हर गांव, हर टोले को कनेक्शन दिया। जितना समय प्रधानमंत्री जी ने दिया था हम लोगों को, उससे कम दिनों में हम लोगों ने कर दिया। उन्होंने कहा 1000 दिन, हमने 987 दिन में करके हर गांव। उसके बाद उन्होंने कहा हर घर को किया जाए, तो हम लोगों ने हर घर को कर दिया। हम लोगों ने 2,83,00,000 घरों को विद्युत संबंध दिया। 19 महीने में इतने अधिक संख्या पूरे देश में, इतने अधिक संख्या में कनेक्शन
एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस दुनिया में इतने कम समय में कभी नहीं हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द हिस्ट्री ऑफ पावर। No other country has so much of expansion of access taking place in such a short time. So we met the challenge of access as far as electricity is concerned. We met the challenge of transition, energy transition. Today the world is talking about energy transition because we need to reduce our emissions, global warming कम करने के लिए. Now in energy transitions, we have the fastest rate of growth of renewable energy capacity in the world. In COP21 in Paris, India has pledged, that is in 2015, India has pledged that by 2030, 40% of our capacity will be from non-fossil fuel sources by 2030. You know when we achieved it? We achieved it in November 21. 9 साल पहले हमने started to achieve it. So, and we have emerged as the most attractive destination for renewables in the world. Our rate of growth of renewable energy is the fastest in the world. So this power and sector, this problem we have taken care of. So the fundamentals, as I would say, are by and large, in order. Then we come to the next, and that other challenge is, the catching up on technology, catching up with the rest of the world. That is something which is a topic which concerns us today, and which concerns every Indian. Now there are a couple of other challenges also which we have, on the way of meeting. A couple of all the challenges. अगर हमें एक तो हेल्थ का चैलेंज है, तो हेल्थ का चैलेंज भी बाय एंड लार्ज हम लोगों ने किया है. एक एम्स था, अब हम लोग हर एक राज्य में 2 एम्स 3 एम्स बना. बाय एंड लार्ज हर डिस्ट्रिक्ट में हम मेडिकल कॉलेज बनाए. फिर भी अभी शॉर्टेज है, अभी भी लोग यूक्रेन जाते हैं, बच्चे जाते हैं मेडिसिन और करने के लिए. लेकिन बाय एंड लार्ज ये सब चैलेंजेस हम लोगों ने मीट कर लिया. Now as far as catching up with the rest of the world, with the developed world, innovation and technology is concerned, उसमें it is a work in progress. It is a challenge before us. It is a work in progress. कुछ तो इसमें एक circumstances और ओरिएंटेशन और साइकोलॉजी इन्वॉल्व. अब सर्कमस्टांसेस क्या इन्वॉल्व है, ओरिएंटेशन क्या इन्वॉल्व है, कल्चर क्या इन्वॉल्व है. हमारे यहाँ स्थिति यह रही है कि हम लोगों के यहाँ घर में डिसिप्लिन, ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते, पिताजी से सवाल नहीं डांटते. स्कूल में डिसिप्लिन, ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते. शिक्षक से ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों नहीं, डांट दें. कॉलेज में भी यही है, कॉलेज में भी यही है. ये कल्चर का प्रॉब्लम, एक ये इश्यू जिसको कि हम लोग को सॉल्व करना है एज ए कंट्री. दूसरा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस. ज्यादातर हम लोगों में से, अब तो खैर सेकंड जनरेशन लोग आने लगे, ज्यादातर हम लोगों में से जो आगे आए, चाहे IITs में आए या सिविल सर्विसेज में आए, वो लोग जनरली फर्स्ट जनरेशन, कुछ लोग सेकंड जनरेशन थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन वो रिस्क नहीं ले सकते. उनको लगता था कि मेरा पूरा परिवार हम पर निर्भर है. वो चाहता था नौकरी करना ताकि हम स्टेबल नौकरी एट अ हायर पेइंग द बेटर. इसीलिए ब्रेन ड्रेन होना चाहिए, क्योंकि उतना वेतन हम नहीं दे सकते थे देश में जितना कि विदेश में मिलता. तो इंटेलिजेंट करके बाहर जाए. लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचा कि हाँ साहब सो हम ये अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप करें, हम अपना एक यूनिट खोलें, हम नया आविष्कार करें. उसमें चैलेंज है, समय लगता है, सस्टेनेंस है.
एक ये सर्कमस्टांस सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये हर एक उस देश के सामने है जो कि अभी ग्रो कर रहा है, हर एक ऐसे देश, और आपके सामने भी होगा, बहुत सारे लोगों के सामने होगा। एक ये सर्कमस्टांस। दूसरा है हम लोगों का जो इकोनॉमिक सेटअप है। अब इकोनॉमिक सेटअप है, आपके पास कोई आइडिया है, उसको फंडिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं, उसमें फंड चाहिए। आपको लोन देने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई बैंक लोन नहीं देगा। अगर कोई व्यापार शुरू करेगा, वैसे बिजनेस शुरू करेगा, तो देखेगा कि हाँ बिजनेसमैन, ये बिजनेस फैमिली से है, उसको लोन दे देगा। लेकिन आप कहिएगा कि मैंने ये आविष्कार किया है, हमको इसको मैन्युफैक्चर करना है, लोन दे दीजिए, बहुत कठिन है। ये चैलेंज हमको बीट करना, और कितना भी कोशिश करें, ये चैलेंज बीट करने में कठिनाई है, क्योंकि बैंकों में ये अभी भी रिलक्टेंस है टू लेंड टू स्टार्टअप्स, ये अभी भी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी हम लोग लगे। इन सारी बिंदुओं पर हमारी सरकार काम कर रही है। ये नरेंद्र मोदी की ही सरकार है, हम ही लोग हैं जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक चैलेंज के रूप में लिया, और इसको हम लोग कंप्लायंसेस कम कर रहे हैं, लाइसेंसिंग कम कर रहे हैं। दूसरा, असिस्टेंस देने के लिए इनोवेशन का कल्चर लाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन। लेकिन सिर्फ उसी से नहीं होगा, ये हम लोग को एक कल्चर चेंज है, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में, अपने घर में। और ये ओरिएंटेशन करना होगा कि यदि आप कोई चीज इन्वेंट करना चाहते हैं, उस पर समय दीजिए, हम लोग आपको हेल्प करें। और पेरेंट्स को भी इसके लिए तैयार रहना है कि हाँ साहब, जो ये हमारा बच्चा रिस्क लेगा पढ़ करके, पेरेंट्स को भी अपने माइंडसेट को चेंज करें। ये चैलेंजेस है, लेकिन इसमें फिर भी अब हमारा देश इतना बड़ा है और हमारा टैलेंट पूल इतना है, इसके बावजूद अब स्टार्टअप्स में हम लोग करीब दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट हब हो, यूनिकॉर्न थर्ड लार्जेस्ट, जैसे पार्टी ने बताया 75 यूनिकॉर्न्स हो गए हमारे। तो आ रहा है, हो रहा, इट इज हैपनिंग। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू हैपन, एंड वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स। And of course, all the IITs will need to get it. And I want to give you a message for all of you who are studying IIT, because I see, the feedback I have is that, all the students who pass out of IITs, the first attempt is to go abroad. It's natural. As I said, salary is important. And, what the developed countries can pay, and probably we cannot pay. ये एक दूसरा प्रॉब्लम, ये जो मैं बात कर रहा था इसके इकोसिस्टम, ये दूसरा प्रॉब्लम। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है, उसको मैं अग्रवाल साहब, उसको मैं जिम्मेवार कर रहा हूँ। ये हमारी यहाँ इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कल्चर नहीं है, ये इजी प्रॉफिट का कल्चर है। हमारे यहाँ क्या कल्चर है? एम्बेसडर कल्चर। एम्बेसडर कार्ड याद है? सेकेंड हैंड फैक्ट्री लाओ विदेश से, उसको चलाते रहो। एक सेकेंड हैंड फैक्ट्री आई जिसका 1950s या 60s का था, उसको 95 तक उन्होंने चलाया, 2000 तक चलाया, खून चूस करके निकाल दिया, उसे छोड़ दिया, चल दी। मैं मोतिहारी में कलेक्टर था, तो वहां पर एक शुगर मिल था, महावीर शुगर। अब वो भी था एकदम बाबा आदम के जमाने में, 1910 1915। एक नया पैसा, ये इंडस्ट्री बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नया पैसा उसके मॉडर्नाइजेशन पर उन्होंने खर्च नहीं किया, एक नया पैसा। और उसको सिक कर ये चलाते एकदम जबकि जर्जर हो गया, छोड़ करके चल। ये कल्चर है इंडस्ट्री। अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च करते। यूनाइटेड स्टेट्स हमसे आगे इसलिए है क्योंकि उसके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अहमियत मानी, हमारे यहाँ नहीं जाने। ये उद्योग को भी बदलना हो,
और ये भूल जाना होगा कि हाँ साहब सो हम ये क्विक प्रॉफिट करें, वहां से कोई टेक्नोलॉजी का टाइप कर ले, आकर के यहाँ बतावे बनावे और बेचे, यही तो हो रहा। तो ब्रेस का कदर नहीं, रिसर्च का कदर नहीं, तो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन आएंगे कहाँ से? रिसर्च इंस्टीट्यूशन सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, और रिसर्च वैक्यूम में नहीं होता। आप ये एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च भले कर लीजिए वैक्यूम, लेकिन जो रिसर्च कमर्शियलाइज होगा उसके लिए कोई कमर्शियल इंटरेस्ट होगा तभी ना वो कमर्शियलाइज होगा, तभी वो वैसा रिसर्च होगा और डेवलपमेंट उसी से होगा। इसको हमको बदलना होगा। आज तक हमारे समझ में नहीं आया कि इसको कैसे हमारे अपने इंडस्ट्री को रिसर्च में कैसे इंटरेस्ट है। हम लोग रिसर्च के लिए ग्रांट देंगे, वो थोड़ा वो दिखाएगा, खा करके बैठ जाएगा। हाँ यही होगा, ये ट्रेजेडी। तो एक समस्या नहीं, एक चीज और हम लोगों को जो गवर्नेंस है उसके बाद ये एक चैलेंज। अब जैसे कि हम लोग नाउ वी आर इमर्जिंग, एज आई सेड वी आर इमर्जिंग एज ग्लोबल लीडर इन एनर्जी ट्रांजिशन। ग्लोबल लीडर आज है एनर्जी ट्रांजिशन। तो हमको क्या क्या चाहिए? अब हमको चाहिए एक तो बैटरी स्टोरेज। तो बैटरी स्टोरेज का हम लोगों ने PLI निकाला, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, ठीक है। और लोग आकर के यहाँ बना देंगे बैटरी स्टोरेज। तो उसके लिए हम लोग एक कस्टम्स वॉल खड़ा करेंगे ताकि जो यहाँ बनावे उनको ये। इसी तरह से हम सोलर में अभी 90% जो हमारे हाई एफिशिएंसी पैनल्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं ज्यादातर चाइना से, तो हमको यहाँ बनाना है। उसके लिए PLI मतलब कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाए हैं। 19,000 पहले तो करीब 4,500 करोड़ का था, अब दोबारा लाए हैं 19,500 करोड़ का। तो उसके लिए फिर वी हैव इलेक्टेड अ टैरिफ बैरियर। You said that the duty on modules from abroad will be 40%, so that people who make here, they will be able to sell. This market will be there for them. But we have to do this with a balance. अगर हम ये protection जारी रखेंगे, the question is how long do you give the protection? Because if you continue with this protection, with this tariff barrier, then he will have no incentive to innovate. इसीलिए हमको ये करना होगा कि 3 साल के बाद वो कस्टम्स बैरियर हम हटा दें ताकि आप दुनिया के साथ कम्पीट कीजिए और इनोवेट कीजिए। तो ये पॉलिसी चॉइसेस हैं, इस पॉलिसी चॉइसेस को हम लोग को देखना होगा। इसी वी आर ऑन द कस्प ऑफ चेंज, वी आर चेंजिंग। That change will be that change will have to be understood by all of us, by the leaders most of all. That is most important. They'll have to understand the nature of change and they'll have to work towards progressing this change. That is what is this. So as I said, coming back to that point, just give me a list of projects which you want funded and how much money you want. We shall provide. Thank you very much. Thank you so much, sir, for giving your experience into words and also assuring us funding to support our projects. On this note, I request Mr. Jawar Singh, Associate Dean of Research and Development and co-convener of this workshop, to propose vote of thanks. Respected Minister of Power, Government of India, Chief Guest of the Day, Sri R.K. Singh ji, Honorable Minister of Industry, Government of Bihar, Guest of Honor, Sri Shenwaz Singh ji, Honorable Minister of Building Construction Department, Government of India, Sri Ashok Chaudhary ji, Distinguished Guest of the Day, Honorable Secretary, Technology Development Board, Sri R.K. Pathak ji, Honorable Professor TNC, Director IIT Patna, Distinguished Guest, Geeta Sarai, Director IIM, Sri Arun Agarwal ji, President, Bihar Industry Association, Professor Arvind Chaubey, Director IIT Bhagalpur, and Sri O.P. Mishra ji. Dear faculty, colleagues and participants, I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have made it convenient to attend this workshop, supported by the TBI and IIT Patna. We are deeply grateful
to the respected Mantri Ji Sri R.K. Singh for presiding over this function and enlightening this address. I have taken this opportunity to express my sincere thanks to Honorable Minister of Industries for their presence, and I also express my deep gratitude to Honorable Minister for building construction. I express my profound thanks to Honorable Secretary TDV and also the distinguished guests. I express my sincere thanks to Honorable Director IIT PATNA, Professor T.N. Singh, who is the driving force and source of inspirations for the event. Thank you very much, sir, for your kind support. I would like to thank personnel from print and electronic media for providing this space in their media outlets with wide coverage of this program. Finally, I thank all my faculty colleagues, officers, staffs, volunteers for their valuable support and great dedications to mark this program with success. Thank you all once again. Jai Hind. We have reached to the end of the inaugural ceremony. Can I request everyone to stand up for national anthem? रंजित रंजित ले लिया ना।